Well, as the Mahakumbh begins in Prayagraj, so does the Mahabharata over it. As far as the politics that has now stormed over, the Supremo of the Samajwadi Party, who's given out a statement saying that we need more bread than religion. Mahakumbh that has commenced in Prayagraj from today onwards. And as far as politics is concerned, it seems to be heating up in Uttar Pradesh with Akhilesh Yadav's controversial comment, with the Samajwadi Party chief sparking off a storm by saying that we need more bread over religion. आज हम जब विवेकानंद जी को याद कर रहे हैं, हमें उम्मीद है कि उनके कही हुई बातों को हमेशा हम लोग दिल और दिमाग में रखेंगे, जहां उन्होंने कहा कि धर्म से ज्यादा हमें रोटी की जरूरत है देश के लोगों को, और जो गरीब हैं उनको धार्मिक बातें समझाना शायद गलत होगा आज के समय में. Well, let's get in a word from Adib. Adib, good afternoon. As far as, the Mahakumbh is concerned in Prayagraj, the questions or the Mahabharata over this, but it is not just one of the biggest confluence as we talk about a religious gathering. Look at the amount of work that has also gotten in as far as arrangements that have been made. It would have given opportunity to thousands of people as far as employment is concerned. Well, definitely, Amita, see, it's a massive gathering and it's one of the biggest gatherings in world where around almost 40 crore people will be taking holy day, and the politics is also playing around. If we talk about the employment, thousands of people have got employment in just 3 months, past 3 months, with the Uttar Pradesh government making extensive arrangements for the Mahakumbh. But politics is playing around. Samajwadi Party has always been making comments on Mahakumbh, and this time again it's Akhilesh Yadav who is talking about indirectly talking about Mahakumbh, and the timing is very important. He was addressing a press conference on Sunday where he was quoting Swami Vivekanand, but the timing of his statement is very crucial. Akhilesh Yadav is saying that the people need bread more than the religion. So Samajwadi Party has always been a target by the BJP, and Samajwadi Party has always been criticizing Mahakumbh. First, it was the leaders of Samajwadi Party who talked about the budget that has been allocated by the state government for the Kumbh. Then they started making allegations on the preparation, and once again it's Samajwadi Party chief Akhilesh Yadav who's saying that people need bread more than anything, more than the religion. So, Amita, the timing is all about very crucial when it comes to Mahakumbh. It's one of the massive gatherings in the world, one of the biggest religious gatherings in the world. And if we talk about the statistics, and if we talk about records, around 60 lakh people have taken the holy dip just on the very first day of Mahakumbh till 9:30 a.m. This number will definitely go up, and what the government is expecting is that around 1 crore people, more than 1 crore people, will take the holy dip on the first day of Mahakumbh itself. But the politics still continues over the Mahakumbh. So even when it comes to politics over Bhakti, as it is now taking center stage, here is the Samajwadi Party chief Akhilesh Yadav, who once again seems to be raising questions, as we have seen when it comes to religious gatherings or confluences that have happened in the past as well. Today seems no different when it comes to political temperatures also being raised or being in the meantime. Let's listen in once again what Akhilesh Yadav's point of view is when it comes to the Mahakumbh in Prayagraj. आज हम जब विवेकानंद जी को याद कर रहे हैं, हमें उम्मीद है कि उनके कही हुई बातों को हमेशा हम लोग दिल और दिमाग में रखेंगे, जहां उन्होंने कहा कि धर्म से ज्यादा हमें रोटी की जरूरत है देश के लोगों को, और जो गरीब हमारे साथ अनुराग भदौरिया हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से. अनुराग भदौरिया जी, आपत्ति है अगर प्रयागराज में बात की जाए, जो सबसे बड़ा महाकुंभ जो सालों के बाद है, हम देख रहे हैं कि करोड़ों में जितनी भक्ति और वहां पर जो सी ऑफ ह्यूमैनिटी नजर आ रहा है, इसके ऊपर पॉलिटिक्स या राजनीति करने की आखिरकार क्या जरूरत? हाँ, भारतीय जनता पार्टी को नहीं करनी चाहिए. आप सही कहते हैं. भारतीय जनता पार्टी को कम से कम धर्म के नाम पे कोई बात नहीं करनी चाहिए. कुंभ इसके पहले भी 2013 में भी महाकुंभ हुआ था. सारी व्यवस्थाएं थी, लोगों ने खूब कुंभ को
कुंभ में स्नान किया। विश्व में इसका नाम हुआ 2013 में जो हुआ था। फिर हार्वर्ड में इसको अवार्ड भी मिला था, कितनी अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज हुआ, जहाँ पे 12 से 14 करोड़ लोग उस समय आए थे। सोचिए आप। तो ये मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी क्यों राजनीति करती है। तो आप पहले अखिलेश यादव जी के स्टेटमेंट को जरा समझाएंगे। दिनेश जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं ब्रॉडकास्ट में। ऐसा क्यों कहना कि अगर रोटी धर्म से ज्यादा जरूरी है? क्या ये जो प्रयागराज में महाकुंभ की जो शुरुआत हुई है, क्या ये हजारों लोगों को एक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी तो देगा साथ में? उन्होंने क्या बोला और आपने क्या सुना? दिक्कत है कि आप सुनना वो चाहते हैं जो मैं चला देती हूँ, मैं एक बार चला देती हूँ आपके लिए भी, हमारे दर्शकों के लिए भी, कि अखिलेश यादव जी ने क्या कहा है। एक बार सुन लीजिए, आप भी खुद सुन लीजिए उन्होंने क्या कहा है, फिर आप हम बता सकते हैं कि उनका आखिरकार मतलब क्या था इस बात का। लेट्स लिसन इन टू अखिलेश यादव वंस अगेन। आज हम जब विवेकानंद जी को याद कर रहे हैं, हमें उम्मीद है कि उनके कही हुई बातों को हमेशा हम लोग दिल और दिमाग में रखेंगे। जहां उन्होंने कहा कि धर्म से ज्यादा हमें रोटी की जरूरत है देश के लोगों को, और जो गरीब हैं उनको धार्मिक बातें समझाना शायद गलत होगा आज के समय में। जी अनुराग जी। ठीक, कहाँ उन्होंने बोला कि कुंभ जरूरी नहीं है? कहाँ उन्होंने बोला? अरे आप पढ़े लिखे हैं, आप तो अनपढ़ जैसी बात कर रहे हैं। एक बार भी कुंभ का नाम आया क्या? उन्होंने बोला, विवेकानंद जी ने बोला। अब विवेकानंद जी भी झूठे हो गए क्या आपकी नजर में? बात विवेकानंद जी की बता रहे हैं, वो ज्ञान की बात बता रहे हैं। ज्ञान आपके समझ में नहीं आ रहा तो हम क्या करें? तो प्रयागराज में क्या हो रहा है? ये जो सवाल अभी भाजपा की तरफ से जो उठाया जा रहा है, आप उन्हें जवाब कैसे देंगे? नहीं, मैं आपको आपके सवाल आपने पूछा उसका जवाब दे रहा हूं। एक बार उन्होंने बोला क्या? उन्होंने बोला कि स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था। स्वामी विवेकानंद जी ने तो ये भी कहा था कि सांप्रदायिकता, कट्टरपंथी जिस समाज में पैदा हो जाता है, जिस देश में पैदा होता है, उस देश के उन्नति के रास्ते पे नहीं जाता। तो क्या विवेकानंद झूठ बोल रहे हैं? मैंने विवेकानंद की बात को कोट करना भी उसके लिए आप कह रहे हो कि ये हो गया, वो हो गया, और उसको प्रयागराज से जोड़ दिया। तो आप कह रहे हैं प्रयागराज कॉन्टेक्स्ट में नहीं है। शहजाद पूनावाला भी हमारे साथ जुड़ गए बीजेपी की तरफ से। ये बोल रहे हैं कि स्वामी विवेकानंद जी के उनके जो उन्होंने सीख दी है, शहजाद, he is speaking on that. As far as Akhilesh Yadav, he says that earning bread is more important than religion. स्वामी विवेकानंद जी ने ये भी कहा था, गर्व से कहो हम हिंदू है। स्वामी विवेकानंद जी ने तो भगवत का अपमान कभी नहीं किया था। स्वामी विवेकानंद जी ने मठाधीश को माफिया कभी नहीं कहा था। स्वामी विवेकानंद जी ने राम भक्तों पर गोली चलाने के लिए उसको सही नहीं माना था। स्वामी विवेकानंद जी ने दूसरे पर्वों का सम्मान करो पर हिंदू आस्था का अपमान करो, ये तो कभी नहीं कहा था। तो मुझे लगता है स्वामी विवेकानंद जी को कौन कोट कर रहा है भाई? और मैं तो कह रहा हूं कि चलिए, आप ये कह रहे हैं ना, आप काशी विश्वनाथ धाम देख लीजिए, 13 करोड़ टूरिस्ट। अयोध्या जी में आज सबसे ज्यादा पर्यटक, आगरा के ताजमहल से ज्यादा, और आज जो महाकुंभ में 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा की इनकम इकोनॉमी जनरेट होगी। तो इससे हिंदू मुस्लिम सभी भारतीयों का पेट नहीं भरेगा। और मैं पूछना चाहता हूं कि किसी और धर्म के विषय में ये कहने की हिम्मत है क्या? कभी अखिलेश जी ये कह के बोल दे कि देखिए दूसरे क्रिसमस धर्म को क्यों मनाना है, क्रिसमस को क्यों मनाना है, वहां पे रोटी ज्यादा जरूरी है। एक बार बोल दो ना, वहां पर तो एक मुंह से शब्द नहीं निकलेगा, क्योंकि यही सेकुलरिज्म है इनका कि हिंदू आस्था का करो अपमान, हिंदू आस्था को दो गाली ताकि मिले वोट बैंक की ताली। जी, अखिलेश प्रताप सिंह भी हमारे साथ जुड़ गए। अखिलेश जी, ये धर्म और रोटी की तुलना आखिरकार क्यों करना? अरे आप लोगों से बड़ा विकट है। धर्म पे भी आप लोग ज्ञानी हैं, शास्त्र पे भी ज्ञानी हैं। वैसे कुंभ तो पहली बार ही हो रहा है, इसके पहले तो कुंभ हुआ ही नहीं है। कोई इतना अच्छा कुंभ कर ही नहीं पाता था। ये तो आप लोगों के व्याख्या है। अब हम ये जाएंगे कि धर्म किसे कहते हैं, तो वो भी एक आध्यात्म की चर्चा हो जाएगा। खैर, हम लोग के धर्म में कहा गया है कि भूखे भजन न होई गोपाला। ये सुना है कि नहीं आपने? धर्म हमारा निजी आस्था का विषय है, लेकिन अगर हम भूखे पेट रहेंगे तो हमें पहले उसकी चिंता सताती रहेगी। तो अपने कर्तव्य को करते हुए, अपने जो आपकी जिम्मेदारी है परिवार का भरण पालन पोषण उद्यम करके कमाना और सबको खाना खिलाना, और गृहस्थ ही जब तक है शास्त्रों में, तो आप लोगों को अगर शास्त्र का ज्ञान होता तो इससे दूसरे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से आए चीजों पे डिबेट नहीं करते। गृहस्थ के बदौलत ही धर्माचार्य हैं।
क्योंकि धर्माचार्य गृहस्थ से ही वो भोजन पाते हैं, वो अपने घर में चूल्हा नहीं चलाते हैं, वो गृहस्थ द्वारा ही प्रदत्त चीजों से उनका जो हमारे लिए धर्म का वो जो उद्यम जी, करते लेकिन हैं, 40 करोड़ लोग अखिलेश जी भक्ति में विलीन बताया जा रहा है कि ये महाकुंभ जो आज शुरुआत हुई है, और हमने देखा है कि कितनी तेजी से ऑन ग्राउंड जो काम किया गया है, चाहे वो व्यवस्था है वो बनाई गई है लोगों के लिए और भक्तों के लिए जो दुनिया भर से प्रयागराज आ रहे हैं, तो वो भक्ति में जितने लोग विलीन है उनकी व्यवस्था में भी तो लोगों को नई अपॉर्चुनिटी काम करने का मौका मिला होगा। जी जी, इसके पहले 2000, 1500 या फ्री में लोग रह लेते थे, अब 1,10,000 के कॉटेज में रहेंगे। 80 लाख की चाय की दुकानें नीलाम हो रही हैं। अभी मैंने सुना 1 लाख करोड़ का वहां पे बिजनेस होगा। कहाँ से ले आते हैं ये 5 सेकंड काउंटर शहजाद, ये एक प्राणी कहाँ से? शहजाद अपना जवाब दीजिए। मैं क्या काउंटर करूं जिन्होंने राम जी के अस्तित्व को नकारा, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को इनके रोमन बोलते हैं, ये नाच गाना है, ये कहते हैं कि राम जी कौन से कमरे में पैदा हुए। अरे जो राम जी के अस्तित्व को नकारते हैं ऐसे लोगों के मुंह क्या लगूं? सुबह सुबह आज शुभ दिन है, लोहड़ी का भी अवसर है, आज अवसर है महाकुंभ के प्रारंभ का। चलिए, महाभारत ओवर महाकुंभ, दैट इज नाउ बीन विटनेस। थैंक यू बोथ ऑफ यू, शहजाद एंड अखिलेश जी, फॉर ज्वाइनिंग इन। अनुराग भदौरिया also of the Samajwadi Party. However, when it comes to the storm over Akhilesh Yadav's statement, as far as we are looking at the reactions coming in from the BJP side, saying that the Samajwadi Party is playing politics on Mahakumbh and he needs to rather be there, as far as Akhilesh is free to skip Mahakumbh if he wishes to. Mr. Akhilesh Yadav is a senior political person. If he does not subscribe to the Mahakumbh, if he does not wish to take a holy dip, that is his choice. But crores and crores of people, a large part of India's population is going to be there. It's the largest congregation on earth. Are you going to run down their faith, their belief, and try to do politics on the shoulders of such an important Sanatan Dharma event? I mean, this is just not acceptable. You are entitled to do your politics. Why are you dragging Sanatan Dharma into that?